हैं अकॉर्डिंग डिफरेंट डिजीज। जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो हेल्थ प्रोफेशनल्स हम उनको कह सकते हैं, और एक जो डाइटिशियन है वो न्यूट्रिशनिस्ट हो सकता है, बट जो एक न्यूट्रिशनिस्ट है वो एक डाइटिशियन नहीं हो सकता। So Excellent. dietitian is the We are implementation dietitians of because nutrition. we are dealing with a therapeutic diet. Any person dealing with the therapeutic diets are dietitians. Any person dealing with the healthy eatings, they are nutritionists. We are dietitians. We can be a nutritionist as well, but we are. If I am nutritionist, then I am not dietitian. Okay, but if I am dealing with the therapeutic diet, then I am dietitian. Because okay, therapeutic diets are always prescribed by the physician and the doctor, and deal with the dietitian. जो पेशेंट को प्रेस्क्राइब करेगा, ठीक है, वो डॉक्टर है, और जो उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा दैट इज डाइटिशियन। थेराप्यूटिक डाइट इज यूजुअली द मॉडिफिकेशन रेगुलर डाइट। किसी एक रेगुलर डाइट में आप एडिशन करते हैं। फॉर एग्जांपल इन हाइपरटेंशन we just subtract the sodium and add potassium. There is addition and subtraction of some nutrients. It is therapeutic. रेगुलर डाइट में किसी भी चीज की मॉडिफिकेशन जो है आपकी थेराप्यूटिक डाइट है। इसमें तीन चीजों की हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट इज न्यूट्रिएंट, इफ द पर्सन इज नीड मोर न्यूट्रिएंट और लेस, then it is nutrient modification. The other one is texture. Why texture? Because some of the people are using the soft diet, some semi-solid and some liquid and some watery foods. All these are the texture modification diets. Next is caloric diet. As we used in the obesity and urinary, some people need high caloric foods and some with the low caloric foods. This is caloric modifications. And here is a picture of Dietitian's Day. Some of my students presented therapeutic diets on World Dietitian Day. And I'm gonna sum up all these diets in these coming slides. Okay. What is the purpose of this therapeutic diet? हम बात तो कर रहे हैं थेराप्यूटिक डाइट। व्हाट इज थेराप्यूटिक डाइट? पता चल गया थेराप्यूटिक डाइट थी, हम लोगों ने डिसीज में यूज की, पेशेंट के लिए यूज की। पर्पस क्या है इसको यूज करने का? कोई भी डिसीज है उसको प्रिवेंट करना है, किसी चीज की डायग्नोसिस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, क्योर के लिए, इंजरी के लिए एंड स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस के लिए। कोई भी डाइट आप अपनी डिसीज के बाद जो यूज करते हैं वो आपकी थेराप्यूटिक डाइट है, जिसमें इवन कि आप घर में एक आम प्रैक्टिस चलती है कि जैसे अब किसी को फीवर हो गया है तो जी उसको खिचड़ी दे दो, ऐसे ही होता है। एम आई राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो डू यू थिंक इट्स थेराप्यूटिक डाइट? Yes. डू यू थिंक इट्स थेराप्यूटिक डाइट? हेलो? No, ma'am. व्हाई? Ma'am, I just gave an idea that according to my point of view, that was not a therapeutic diet. I think it's just a modified consistency diet. ओह ओके, मैंने पहले बताया था कि कंसिस्टेंसी की मॉडिफिकेशन दैट इज थेराप्यूटिक। Okay, for example, ma'am, I'm if we sorry. are going Which through one the now? soap diet, that is therapeutic as well. किसी भी डिसीज की प्रिवेंशन के लिए, उसके क्योर के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम उसकी कंसिस्टेंसी चेंज करें, हम उसकी कैलोरीज चेंज करें, हम उसका कोई मेथड चेंज करें, ऑल ऑफ दीज आर थेराप्यूटिक्स. All of these are therapeutic diets. If I change the consistency for the fever because maybe he have or she have the sore throats, that's why I'm giving her the soft diet, and that is therapeutic. Okay, Okay, understand? ma'am. Okay, next are the few types of therapeutic diets. The first one is regular, then liquid, soft, diabetic, calorie controlled, low cholesterol, fat, sodium, proteins, bland diet, and low residue diet. सब जानते हैं डाइट्स को, ठीक है? तो हम वन बाय वन अब पढ़ते हैं कि डाइट्स हैं कौन सी, यूज क्यों होती हैं और कैसे पेशेंट्स को देते हैं इनको। ओके, द फर्स्ट वन इज रेगुलर डाइट। व्हाट इज रेगुलर डाइट? मैम एक्सक्यूज मी मैम, अगर लाइक माइग्रेन है तो उसके अंदर भी डाइट की डिफरेंट टाइप्स के हिसाब से अगर हमें उसको क्योर करना है तो थेरेप्यूटिक डाइट ही यूज होगी। सॉरी, लाइक माइग्रेन है हमारे पास जो होता है, yes, तो उसमें भी obviously if you are थेरेप्यूटिक, treating the migraine with the food, that is therapeutic. उसमें भी ये इन डाइट्स में से कोई एक डिफरेंट फॉर्म यूज होगी। Yes, obviously question answer session will be at the last. आप कोई भी मुझसे डाइट पूछ सकते हैं, there is no issue. Okay, continue. Okay, yes ma'am. Thank you. Okay,
The first one is regular. It includes the balanced diet, usually used for the ambulatory patients. At the time, slightly reduce the calorie content. What is the ambulatory patients? Ambulatory patients कौन से होते हैं? Anybody know? Sometime ऐसे होता है पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाता है, बाद में उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है. जो पेशेंट ट्रीटमेंट के बाद अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं, दे आर एम्बुलेटरी पेशेंट. ठीक है, उनको एक बैलेंस डाइट दी जाती है, बिकॉज उस टाइम पे उनका ब्लड लॉस भी मे भी हुआ हो. ठीक है, उस टाइम उनका कैलोरिक लॉस भी होता है, उस टाइम उनके जितने भी लॉसेज हैं उनको कंपेंसेट कर लिए हम लोग उनको बैलेंस डाइट देते हैं. हियर इज एन एग्जांपल कि हम उनको जो है हर फूड ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं. इसमें आप अवॉइड क्या करते हो? कोई भी क्रीमी डिजर्ट हो गया, कोई सॉसेस हो गए, कोई हैवी सैलड्स हो गए और फ्राइड फूड्स हो गए. इसमें हमारे पास एग्जांपल है वन ऑफ माय स्टूडेंट, आई गेस नेम Hiba, present this diet with the concept 5 food groups. The first one is roti. It presents a cereal. The second one is vegetables, the fruit, proteins, and a glass. It includes the dairy. Okay. My plate concept is for the balanced diet. Okay, next one is the liquid diet. Nutritionally inadequate. Why it is nutritionally inadequate? Because all of the nutrients are not present. Should be used only for the shorter period of time. For example, when after NPO break, जब हम MPO break करवाते हैं उसके बाद most of the patients जो है वो hard food नहीं ले सकते. अगर वो hard food लेते हैं तो उनको gastric issue हो जाता है या as such वो vomit और nausea feel करते हैं. तो इस तरह के पेशेंट्स के लिए हम लोग लिक्विड डाइट रिकमेंड करते हैं. एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, क्योंकि अगर इसका लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ले जाएंगे तो ये आपको न्यूट्रिशनली बहुत ज़्यादा पीछे ले जाएगी. फॉर एग्जांपल इसमें न्यूट्रिएंट लॉस जो है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट है, इसमें हर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होता. ये किसी भी सर्जरी के लिए, सर्जरी के बाद पेशेंट जब आता है उसको फौरन से लिक्विड डाइट दी जाती है, उसको सेमी सॉलिड पे भी नहीं लेके जाया जाता. फॉर द पेशेंट्स विद द एक्यूट इन्फेक्शन हैविंग डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स इंक्लूड्स द diarrhea, vomiting, and nausea as well. X-rays of the digestive tract. कभी किसी ने देखा होगा एक्सरे करवाना हो, अल्ट्रासाउंड करवाना हो तो वो कहते हैं कि जी आप लिक्विड ज़्यादा लें ताकि आपकी जो स्कैनिंग है वो क्लियर हो. Here is a representation of the liquid diet. ये थी एंटी इन्फ्लामेटरी एंटीऑक्सीडेंट रिच जूस, एक बच्ची ने बनाया था नेम्ड फातिमा. तो इसके बारे में किसी ने कुछ पूछना हो, they can be asked at the end of the presentation. ओके, लिक्विड डाइट में हमारे पास दो चीजें आती हैं, क्लियर लिक्विड डाइट एंड फुल लिक्विड डाइट. एनीबॉडी नोस व्हाट इज द क्लियर लिक्विड एंड फुल लिक्विड? हालांकि दोनों सेम लग रही हैं. I can give one example in this. Sure. जो लिक्विड है ना, जैसे फुल लिक्विड डाइट है उसमें हम जो फूड्स लेते हैं जो